اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم۔ میں محمد جواد اقبال، لیکچرر اردو، چناب کالج جھنگ، آپ سے مخاطب ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع رسید نگاری سے متعلق ہے۔ رسید نگاری کا سوال سال اول میں 10 نمبر پر مشتمل سوال ہے۔ اس سوال کے ساتھ درخواست کا سوال بھی آتا ہے۔ درخواست اور رسید میں سے ایک چیز آتی ہے اور وہی کرنی ہوتی ہے۔ عزیز طلباء، آج ہم رسید نگاری کے متعلق بات کریں گے۔ رسید کا لغوی معنی پہنچ، پہنچنا یا رسائی کے ہیں۔ اصطلاحی معنوں میں کسی چیز یا رقم کی وصولی کا تحریری ثبوت رسید کہلاتا ہے۔ رسید عام طور پر دو اشخاص کے درمیان لکھا گیا تحریری معاہدہ ہے، جس میں ایک شخص فروخت کنندہ جبکہ دوسرا شخص خرید کنندہ کہلاتا ہے۔ رسید کے حصے نمبروں کی تقسیم کے لحاظ سے رسید کے بنیادی طور پر 3 حصے ہیں۔ نمبر 1 ابتدائیہ، نمبر 2 نفس مضمون، نمبر 3 اختتامیہ۔ نمبر 1 ابتدائیہ۔ رسید کے ابتدائی حصہ میں صفحہ کے درمیان میں درج ذیل کلمہ لکھا جاتا ہے۔ یہ کلمہ فارسی زبان کا ہے اور اس کا مطلب ہے اس تحریر کو لکھنے کی وجہ یا سبب یہ ہے۔ باعث تحریر آن کے اس کلمہ لکھنے کا 1 نمبر ہوتا ہے۔ رسید کا دوسرا حصہ نفس مضمون کے متعلق ہے۔ یہ رسید کا سب سے اہم حصہ ہے۔ نفس مضمون کے 3 حصے ہیں۔ نمبر 1 کل رقم اور اس کا نصف۔ اس میں کل رقم لفظوں اور ہندسوں میں لکھی جاتی ہے اور اس کا نصف بھی لکھا جاتا ہے تاکہ رسید میں تبدیلی نہ کی جا سکے۔ اس کو لکھنے کا طریقہ یہ ہے: مبلغ 1,00,000 روپے، نصف جن کے مبلغ 50,000 روپے ہوتے ہیں۔ نمبر 2 نفس مضمون کا دوسرا حصہ فروخت کی گئی چیز کی مکمل کیفیت کے متعلق ہے۔ اس میں جو چیز فروخت کی گئی ہو اس کی کیفیت یا تفصیل لکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک موٹر سائیکل کی تفصیل یوں لکھیں گے: بابت قیمت 1 عدد موٹر سائیکل، مارکہ ہونڈا، 70 cc، سیکنڈ ہینڈ، انجن نمبر 6913، چیسز نمبر 151821، رجسٹریشن نمبر LZR 1819۔ نمبر 3 جس کو فروخت کی گئی ہے یعنی خرید کنندہ کا مکمل نام و پتہ۔ نفس مضمون کا تیسرا حصہ خرید کنندہ کے مکمل نام و پتہ کے متعلق ہے۔ اس میں خرید کنندہ کا مکمل نام، ولدیت اور پتہ لکھتے ہیں۔ متعلقہ ریجن کے کسی بھی شہر یا ضلع کا نام نہیں لکھا جائے گا۔ اگر آپ کی متعلقہ ریجن فیصل آباد ہے تو شہر کی جگہ الف ب ج بھی لکھ سکتے ہیں اور کسی دوسری ریجن کے ضلع کا نام بھی لکھ سکتے ہیں۔ مثلاً اذاں علی محمد
वल्द फ़तह मोहम्मद, कौम मलिक, साकिन मदीना टाउन लाहौर। लाहौर की जगह अलिफ बे जीम भी लिख सकते हैं। नफ्से मजमून के 5 नंबर होते हैं। रसीद का तीसरा हिस्सा इख्तितामी हिस्सा है। इस हिस्से में 4 चीज़ें लिखी जाती हैं। नंबर 1, गवाह नंबर 1। नफ्से मजमून के इख्तिताम पर दाईं तरफ गवाह का नाम, उसकी वल्दियत और उसका मुकम्मल पता लिखा जाता है। नंबर 2, गवाह नंबर 2। नफ्से मजमून के इख्तिताम पर बाईं तरफ गवाह का नाम और वल्दियत और मुकम्मल पता लिखा जाता है। नंबर 3, फ़रोख्त कुनिंदा का नाम और पता। नफ्से मजमून के इख्तिताम पर अल अब्द लिखने के बाद सफ़े के दरमियान में फ़रोख्त कुनिंदा का नाम, उसकी वल्दियत और मुकम्मल पता लिखा जाता है। नंबर 4, तारीख़। रसीद के इख्तिताम पर दाईं तरफ या फ़रोख्त कुनिंदा के नाम व पता के आखिर में तारीख़ लिखते हैं। तारीख़ लिखने का दुरुस्त तरीका ये है: 7 जुलाई 2020। इस हिस्से के कुल नंबर 4 हैं, 2 गवाहान के, जबकि 1 नंबर फ़रोख्त कुनिंदा का और 1 नंबर तारीख़ का है। इस तरह रसीद के कुल नंबर 10 बनते हैं। अब हम एक रसीद बतौर नमूना देखते हैं। रसीद बराए वसूली रकम बाबत फ़रोख्तगी मोटरसाइकिल। सबसे पहले हम रसीद के पहले हिस्से में फ़ारसी का कलमा लिखेंगे 22 तहरीर आंग के। उसके बाद हम नफ्से मजमून लिखेंगे। नफ्से मजमून को अगर बगौर देखें तो पहला फ़िक्रा 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इस हिस्से में पहला हिस्सा रकम के मुतल्लिक, दूसरा हिस्सा उस शय की कैफियत के मुतल्लिक और तीसरा हिस्सा नाम और पता के मुतल्लिक है। अब हम इस रसीद का नफ्से मजमून पढ़ते हैं। मुबलग 1 लाख रुपए, निस जिनके मुबलग 50,000 रुपए होते हैं। अब इसके बाद हम सख्ता की अलामत लगाएंगे। बाज़ जगहों पर ख़त्मा की अलामत भी इस्तेमाल की जाती है, लेकिन आपको चाहिए कि आप सख्ता की अलामत लगाएं, क्योंकि ये एक मुसलसल फ़िक्रा है। बाबत कीमत 1 अदद मोटरसाइकिल मार्का होंडा 70 सीसी सेकंड हैंड, इंजन नंबर 6913, चेसिस नंबर 151821, रजिस्ट्रेशन नंबर LZR 1819। अज़ां अली मोहम्मद वल्द फ़तह मोहम्मद, कौम मलिक, साकिन मदीना टाउन लाहौर वसूल पाए हैं। अजीज़ तलबा, अगर हम इस फ़िक्रे को दोबारा से देखें तो रसीद लिखने वाला ये लिखता है कि मैंने इतनी रकम इस चीज़ के मुतालिक फलां शख्स से वसूल पा ली है। तो ये एक मुसलसल फ़िक्रा है जिसके दरमियान में सख्ता की अलामत का इस्तेमाल किया गया है, और इस एक फ़िक्रे के इख्तिताम के बाद एक और अहम फ़िक्रा लिख दिया जाता है और रसीद लिख दी है ताकि सनद रहे और बवक्त ज़रूरत काम आए। सनद का लफ्ज़ी मतलब सबूत है। इसके बाद
रसीद के नीचे दाएं और बाएं साइड पर गवाहों के नाम और दरमियान में रसीद लिखने वाला या फरोख्त कुनिंदा का नाम, उसकी वल्दियत और उसका मुकम्मल पता लिखा जाएगा। आम तौर पर रसीद वो शख्स लिखता है जो अपनी चीज़ बेचता है, लेकिन अगर वो शख्स अनपढ़ हो तो उसकी जानिब कोई और उसकी तरफ से कोई और शख्स भी ये रसीद लिख सकता है। रसीद के इख्तिताम पर तारीख लिखी जाती है। तारीख रसीद लिखने वाला अपने नाम के नीचे दरमियान में भी लिख सकता है, जबकि रसीद के इख्तिताम पर दाईं तरफ भी तारीख लिखी जा सकती है। अजीज तलबा, इसके बाद कुछ अहम रसीदें लिखने के लिए ज़रूरी है कि आप इन इस्तिलाहात को जान लें। बड़े जानवरों गाय और भैंस के लिए रास का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। छोटे जानवरों बकरा और बकरी के लिए शाख का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। भेड़ के लिए मेश का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। घोड़े और गधे के लिए लगाम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। ऊंट और ऊंटनी के लिए नुकेल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। मैंने यहाँ पर इन तमाम जानवरों की कैफियत लिख दी है ताकि अगर इन जानवरों की फ़रोख्तगी और रकम की वसूली के मुतल्लिक रसीद लिखना हो तो आप नफ्स मज़मून यूं लिख सकते हैं। अगर रसीद फ़रोख्तगी भैंस लिखना हो तो आप नफ्स मज़मून यूं लिखेंगे: बाबत कीमत एक रास भैंस, रंग स्याह, दुम लंबी सुनहरी और सफ़ेद, सींग सीधे, पंज कल्याण, उम्र 2 साल, दूधेल, माँ 1 कटड़ी, उम्र 5 माह। अगर रसीद वसूली कीमत बकरी लिखनी हो तो उसका नफ्स मज़मून यूं होगा: बाबत कीमत एक शाख बकरी, रंग स्याह, खुर सफ़ेद, माथे फूल, सींग नुकेले, कद दरमियाना, दूध खुश्क, दांत पूरे। अगर रसीद फ़रोख्तगी भेड़ लिखना हो तो शाख की जगह मेश का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। रसीद वसूली कीमत घोड़ी लिखना हो तो हम घोड़ी के साथ रास का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। अगर रसीद फ़रोख्तगी ऊंट लिखना हो तो हम ऊंट के साथ नुकेल का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। अब हम आते हैं चंद अहम रसीदात और उनके नफ्स मज़मून की तरफ। अज़ीज़ तलबा, ये चंद अहम रसीदात हैं जिनका नफ्स मज़मून लिखते हुए आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। आपके लिए ज़रूरी है कि इन रसीदात के नफ्स मज़मून तैयार कर लें जो आपके सामने स्लाइड पर दिखाई दे रहे हैं। रसीद बराए वसूली रकम बाबत कर्ज़ हसना: अगर आपने किसी से कुछ रकम कर्ज़ा के तौर पर लेनी हो तो उसकी रसीद भी लिखी जाएगी और ये रसीद आप उस शख्स को लिख कर देंगे और सबूत के तौर पर यह रसीद रखी जाएगी। रसीद बराए वसूली वजीफ़ा: बाज़ुकात आप वजीफ़ा वसूल करने के लिए जाते हैं तो उसकी रसीद का नफ्स मज़मून इस तरह लिखा जाएगा: रसीद वसूली कीमत आबियाना व मालिया
साल में 2 फसलें होती हैं, फसल रबी और फसल खरीफ। हर 2 फसलों के ऊपर पानी का और ज़मीन का टैक्स लिया जाता है, जो कि हुकूमत की तरफ से लागू होता है। उसके लिए रसीद का नफ्स मज़मून यूं लिखा जाएगा, रसीद राहदारी। अगर आप कोई जानवर लेकर जा रहे हैं तो मंडी तक जाते हुए रास्ते में कोई शख्स भी उस जानवर के मुतालिक पूछ सकता है, तो उस जानवर का हकीकी मालिक उसके मुतालिक एक तहरीरी रसीद लिख कर देगा, ताकि रास्ते में किसी भी किस्म की इंक्वायरी की सूरत में वो रसीद दिखाई जा सके। इसके बाद रसीद वसूली रकम किराया बाबत मकान है। ये रसीद भी एक अहम रसीद है। इसका नफ्स मज़मून इस तरह लिखा जाएगा, अजीज़ तलबा, उम्मीद है कि इस मुख्तसर लेक्चर में आप रसीद निगारी के मुतल्लिक जान चुके होंगे। अगर आप रसीद के मुतल्लिक कोई सवाल करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।